Good morning. Today we will start out with theorem 6.7, and theorem is if ABC is a right angle triangle and perpendicular drawn from the right angled vertex to the hypotenuse. Suppose here BD is perpendicular on AC. Now we have to prove the triangles this ADB, BDC. They are similar to the triangle ABC and to each other. This is the theorem. Statement is if a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle of a right angle triangle to the hypotenuse, then the triangles on the both sides of the perpendicular are similar in the to the whole triangle and to each other. This is the theorem. So first of all you will write given, and in given we will write triangle ABC is a right angle triangle at B. ये right angle triangle B vertex पे. To prove these we have to prove triangle ADB similar to triangle ABC. Second one, triangle BDC similar to triangle ABC. And third one, triangle ADB similar to triangle BDC. These three things we have to prove. Now see in proof. In proof we will take first one. You will write in triangle ABC and triangle ADB. Here you will write angle A is equal to angle A, that is common, and its angle B, its angle D, each of 90 डिग्री. आपका ABC ट्रायंगल में B 90 डिग्री और ADB ट्रायंगल में एंगल D 90 डिग्री है. सो टू एंगल्स इक्वल मीन्स ट्रिपल ए जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया था उसको ए क्राइटेरिया बोल देंगे. सो बाय ए क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ADB. तो फर्स्ट हमें प्रूव करना था वो हमारा यहाँ पे क्लियर होता है. इसको आप इक्वेशन फर्स्ट नेम दे देंगे. सेकंड था आप लेंगे इन ट्रायंगल ABC and triangle BDC. Here you will take its angle B and its angle D each 90 degree. ABC ट्रायंगल में B 90 डिग्री है, BDC ट्रायंगल में D 90 डिग्री है. यहाँ पे जो BDC नेम दिया हमने उसका एक रीजन है. अगर आप DCDB नेम दे देंगे तो ये सिमिलरिटी प्रूव नहीं होगी. आपको नेम किस अकॉर्डिंग देना है कि इनके जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए. जैसे कि इसका एंगल B है 90 डिग्री है, लास्ट में जो पॉइंट आता है वो C आता है. इट मीन्स ये जो एंगल है एंगल C, ये ABC और BDC इन दोनों ट्रायंगल्स का कॉमन एंगल आएगा. तो जब ये सेम रेस्पेक्ट में होगा, इसका कोरस्पोंडिंग एंगल होगा, तब जाके ये इक्वल हो सकता है. एंड हियर यू विल टेक its angle C is equal to its angle C common. Again by A criteria triangle ABC is similar to triangle BDC. और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नेम दे दीजिए आप. दोनों प्रूव होते हैं, फर्स्ट भी प्रूव होता है और सेकंड भी प्रूव होता है.
अब आप रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से ADB भी सिमिलर टू ABC है और BDC भी सिमिलर टू ABC है। इट मीन्स जब इनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी सिमिलर होंगे। यू विल राइट ट्रायंगल ADB will be similar to triangle BDC and hence proved. See once again, ABC is a right angle triangle, right angled at B. We have to prove, and in given one more thing you will write, BD is perpendicular to AC. In this one, with this is also given BD वर्टेक्स पॉइंट से हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, देन BD is perpendicular to AC. This also we have to add this one. Now to prove triangles on the both side of the perpendicular, इससे इस साइड में और इस साइड में, ये दोनों triangles similar to the complete triangle ABC होगा and they will similar to each other. Now firstly we will take a ABC and ADB triangle. In this you will get angle D and angle B equal to 90 degree and angle A common. So by A criteria you will prove these are similar triangles. Similarly you will prove BDC similar to ABC, and if both triangles are similar to ABC then you will write they are also similar to each other. This was your theorem 6.7. Next is theorem 6.8. In theorem 6.8, this is also known as Pythagoras theorem. He said, in a right triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two triangles. एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास, सपोज हमने लिया ABC राइट एंगल ट्रायंगल। आपको प्रूव करना है कि इसका जो हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर आएगा वो इन टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आएगा। ये आपने को प्रूव करना है। तो फर्स्टली यू विल राइट गिवन, एंड इन गिवन वी विल राइट ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल एट बी पे राइट एंगल है। टू प्रूव we have to prove AC, that is the hypotenuse, its square is equal to the sum of the squares of other two sides. This AC square we have to prove equal to AB square plus BC square. Now see 6.7 थ्योरम ने गिवन था कि B से यहाँ AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। यहाँ हमें रिक्वायरमेंट है इसकी, तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। इन कंस्ट्रक्शन वी विल राइट ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC, और हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। Now in proof we will write again, आपने को वही करना जो 6.7 में किया था कि जो ADB ट्रायंगल है वो ABC के सिमिलर है और BDC जो ट्रायंगल है वो ABC के सिमिलर है। ये दोनों वही करना, वही से अपना रिजल्ट निकलेगा। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB, आप लिखेंगे कि इसका एंगल B और इसका एंगल D 90 डिग्री है, इक्वल है। इसका एंगल A और इसका एंगल A ये कॉमन है। देन बाय A क्राइटेरिया
ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी। यहां से हमें जो लेना है हम लेंगे इसका जो राइट हैंड साइड है ए बी स्क्वायर, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के अकॉर्डिंग हमें ए बी स्क्वायर फाइंड आउट कर लेना है और ए सी स्क्वायर फाइंड आउट कर लेना है। यहाँ पे इसके बाद में लेता हूं, हमें यहाँ ए बी ले लिया, तो इसके फर्स्ट टू वर्टेक्स पॉइंट लिए, तो इसके फर्स्ट टू वर्टेक्स पॉइंट आएंगे ए डी, ये इक्वल रहेगा। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई में ए बी स्क्वायर लेना है, इट मीन इसका डिनोमिनेटर ए बी आएगा, तो इसका ए बी है फर्स्ट और लास्ट वर्टेक्स, तो यहाँ भी इसका क्या होगा फर्स्ट और लास्ट। यहाँ पे हम रखेंगे ए सी डिवाइड बाई ए बी। सिर्फ ये चीज समझने की थी। सी इसका ए बी हमने फर्स्ट टू वर्टेक्स पॉइंट लिए, इसका फर्स्ट टू ए डी आ गया। अब हमें ए बी का स्क्वायर चाहिए और वो आएगा हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में ए बी आना चाहिए, तो ए बी आता है फर्स्ट और लास्ट वर्टेक्स से, तो इसका भी फर्स्ट और लास्ट लेंगे, तो इसका फर्स्ट और लास्ट ए सी डिवाइड बाई ए बी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लिखेंगे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नेम दे देंगे। इज इट क्लियर? नाउ सी अगेन इन ट्रायंगल बी डी सी ए बी सी एंड triangle BDC. Here you will write its angle B and its angle D. They are equal to 90 degree. Its angle C and its angle C, which is common. Now by a criteria, triangle ABC similar to triangle BDC. ये एबीसी ट्रायंगल बीडीसी के सिमिलर हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद देखिए यहां से भी हमने लिया ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल बीडीसी। यहां अपने को इधर का राइट हैंड साइड जो है उसका ए बी स्क्वायर हम फाइंड आउट कर चुके हैं, अब अपने को बीसी स्क्वायर चाहिए, तो इसका बीसी लेने के लिए लास्ट टू पॉइंट है हमारे पास, तो इसके लास्ट टू पॉइंट डिवाइड बाई डीसी इक्वल टू, अब क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ बीसी स्क्वायर आना चाहिए, तो इधर डिनोमिनेटर में बीसी आएगा तो फर्स्ट और लास्ट आते हैं, इसका भी फर्स्ट और लास्ट लेंगे, ये आएगा एसी और ये आएगा बीसी। When we cross multiply it, we get BC square equal to DC into AC, और इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड नेम देते हैं। ये समझ आया कि समझिए क्वेश्चन हो गया। हमने ABC और ADB ट्रायंगल को सिमिलर किया, वहां से हमें पास AB स्क्वायर आता है, फिर ABC और BDC ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव किया और वहां से हमारे पास BC स्क्वायर आता है। अब हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब आप इनको ऐड करेंगे तो इसका लेफ्ट हैंड साइड आता है आपके पास ए बी स्क्वायर, आप रखिए ए बी स्क्वायर प्लस इसका लेफ्ट हैंड साइड बी सी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ इसका राइट हैंड साइड ए डी इंटू ए सी प्लस इसका राइट हैंड साइड बी सी इंटू ए सी। ये तो एज इट इज रह जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बोथ इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को हमें ऐड करना है इक्वल टू, यहाँ ए सी कॉमन है तो आपके पास आता है ए डी प्लस डी सी। ओके, दिस विल बी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू, यहां से जो ए डी प्लस डी सी आ रहा है ये कंप्लीट साइड अपना ए सी है, तो इसके प्लेस पे हम रख देंगे ए सी एंड वी विल गेट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर एंड हैंस प्रूव्ड। ये हमें प्रूव करना था। ये थ्योरम थी हमारी 6.8 थ्योरम, जिसको पाइथागोरस थ्योरम में बोलते हैं। सिंपली वो पूछता भी है, प्रूव था पाइथागोरस थ्योरम, तो यहां से आप पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करना है। वन मोर थ्योरम, और इस एक्सरसाइज की इस चैप्टर की लास्ट थ्योरम, ये थ्योरम है 6.9 और 6.9 थ्योरम है आपके पास द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम।
कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम मींस सपोज एक ट्रायंगल है, उसमें होता है कि उसकी वन साइड जो स्क्वायर है, वन साइड का जो स्क्वायर है वो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है। एक ये ट्रायंगल है, इसमें हमने वन साइड ली AC, इसका जो स्क्वायर वो अदर टू साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल है, तो बोलता है कि उस साइड के अपोजिट एंगल को हम 90 डिग्री प्रूव करेंगे। ये अपनी थ्योरम है, ये 90 डिग्री होगा, ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमारा सॉल्यूशन देखिए, अभी तक हमने प्रूव किया था कि ये इसके इक्वल होता है, अब हमें ये गिवन है और ये प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री है। नाउ सी यू विल राइट, अब हमें ये 90 डिग्री प्रूव करना है, तो फिगर को आप 90 डिग्री ट्रायंगल के जैसा ही बनाएंगे। इन गिवन वी विल राइट इन ट्रायंगल ABC, AC स्क्वायर इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमने वन साइड को AC ले लिया और अदर टू साइड से AB और BC, ये अपने पास गिवन है। टू प्रूव, in to prove we have to prove angle B is 90 degree। ये लिखिए ABC is right angled at B, दोनों एक ही चीज है। उसके बाद हमें रिक्वायरमेंट होगी कंस्ट्रक्शन की, और कंस्ट्रक्शन में अपने को ड्रॉ करना होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे हम। सपोज हम PQR राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं Q पे, किस कंडीशन का? सी ड्रॉ PQR राइट एंगल ट्रायंगल at point Q such that कि PQ जो है वो तो इक्वल लिया हमने AB के, एंड जो QR लिया वो हमने इक्वल ले लिया BC के। हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ की है, कैसी? राइट एंगल ट्रायंगल PQR, Q पे राइट एंगल है, किस कंडीशन का? कि इस साइड को तो इसके इक्वल लिया है और इस साइड को तो इसके इक्वल लिया। ऐसा हम कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन में। अब आइए प्रूफ में। इन प्रूफ वी विल राइट इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट और अपने पास गिवन है। देन वी विल राइट इन right triangle PQR, our PR square will be equal to PQ square plus QR square। इट्स इक्वेशन नंबर सेकंड, और इसका रीजन लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम हम जो 6.8 प्रूव कर चुके हैं उसका यूज हमने यहाँ पे किया है कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके अपोजिट साइड जो हाइपोटेनस होता है उसका जो स्क्वायर होता है वो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यहाँ पे हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, या अभी रुकिए, फर्स्ट और सेकेंड अभी नहीं लेना आपको, इतना लिया हमने। उसके बाद हम लिखेंगे PR स्क्वायर इक्वल टू, जो PQ हमने AB के इक्वल लिया था तो PQ के प्लेस पे AB स्क्वायर रख दे, QR BC के इक्वल लिया था हमने, एक PQ AB के इक्वल और QR BC के इक्वल, तो यहाँ पे हम BC स्क्वायर रख दें और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नेम दे दें। रीजन लिखें बिकॉज AB इज इक्वल टू PQ एंड BC इज इक्वल टू QR। ये भाई कंस्ट्रक्शन लिया हमने। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये AC स्क्वायर भी इसके इक्वल है, PR स्क्वायर भी इक्वल है, तो हम यहां से लिखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर, मीन्स जो AC है वो PR के इक्वल है। नाउ
इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इसका जो ए बी है वो इक्वल है इसके पी क्यू के, इसका जो बी सी है वो इक्वल है इसके क्यू आर के बाय कंस्ट्रक्शन। और ये जो हमने प्रूव किया है ए सी इज इक्वल टू पी आर, ये इसके इक्वल आता है। सो यू विल राइट बाय एस क्राइटेरिया triangle ABC will be congruent to triangle PQR। ये congruent होगा, और congruent होगा तो इसका जो एंगल B है वो इसके एंगल Q के इक्वल आ जाएगा। सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड हैंस प्रूव्ड। ये अपने को प्रूव करना था। सी वंस अगेन एबीसी ट्रायंगल है जिसमें एसी स्क्वायर, वन साइड का जो स्क्वायर हो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है, वो हमने राइट डाउन किया है यहाँ पे। प्रूव हमें करना है कि एंगल जो बी है वो 90 डिग्री रहेगा, या ये कहें कि जो वन साइड है उसके अपोजिट एंगल 90 डिग्री होगा, ये प्रूव करना है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन में एक अनदर ट्रायंगल ड्रॉ करनी है हमें ए पी क्यू आर, और उसको राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। उसकी कंडीशन है कि इसकी जो साइड पी क्यू है उसको वन साइड ए बी के इक्वल ले लिया, इसकी साइड जो क्यू आर है उसको इसकी साइड बी सी के इक्वल ले लिया। ड्रॉ करने के बाद प्रूफ में आएंगे। प्रूफ में अपने पास एबीसी ट्रायंगल में जो गिवन है वो हमने राइट डाउन किया, उसके इक्वेशन 1 नेम दिया। सेकंड ट्रायंगल हम पी क्यू आर लेंगे और इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके अपने पास जो पी आर स्क्वायर आएगा वो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अब पी क्यू ए बी के इक्वल है तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया ए बी में, तो पी आर स्क्वायर आता है ए बी स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर आता है बी सी स्क्वायर। यहाँ से जब इनको कंपेयर करेंगे तो इनका राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल आ जाएगा। इसका एसी स्क्वायर इसका पी आर स्क्वायर इक्वल आएगा। जब इनके स्क्वायर इक्वल है तो ये साइड्स भी इक्वल होंगी, मींस एसी इक्वल टू पी आर। उसके बाद ट्रायंगल एबीसी और पी क्यू आर में जाना है अपने को। इन बोथ ट्रायंगल्स में हम एस क्राइटेरिया से इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद इनके जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स है वो इक्वल आ जाएंगे, और वो आ जाएगा आपका 90 डिग्री।